वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज बहुत छोटा टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट की हम लोग बात करेंगे। जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। So once again, good evening everyone. Today's topic that is all about conflict. So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I'm taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda. Mentored and guidance more than 1000 plus candidates who have successfully qualified UGC NET GRF in Commerce Management and Economics. Cracked the UGC NET GRF 4 times in Commerce and Management. Published more than 20 research papers in top quality index journals. MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics, the PhD Private Economics. Today's topic is all about conflict. Conflict क्या होता है आप लोगों को पता है। जब ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ रीजन बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट। कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। An express struggle between at least two interdependent parties who perceived incompatible goals, scarce resources and interferences from the other party in achieving their goals. तो कई सारे कारणों की वजह से दो पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट में, एटलीस्ट आपको खुद से तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एटलीस्ट वी रिक्वायर द टू पार्टीज। तो टू इंटरडिपेंडेंट हमको पार्टीज चाहिए, तो दो पार्टीज होनी चाहिए, दो लोगों के बीच में हमारा कम से कम कॉन्फ्लिक्ट होगा। हु परसीव द इनकॉम्पिटेबल गोल्स, इसके रिसोर्सेज संसाधनों की कमी, इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर पार्टीज इन अचीविंग देयर गोल्स। So it express struggle between at least two parties, two interdependent parties who perceive incompatible goals, scarce resources, and interferences from the other parties in achieving their goals. A process that begins when one party perceives that another party has negatively affected about affect something that as the first party cares about. The process that begins when party perceive that another party is negatively affected or about to affect something that the first party cares about. तो कई सारे कारणों की वजह से दो लोगों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, ड्यू टू सर्टेन गोल अचीव नहीं हो रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी में इंटरफेरेंस कर रही है, या स्केयर ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों की कमी होती है, और एवरीवन इज लुकिंग फॉर दोस रिसोर्सेज बट वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज बट वी हैव मोर पार्टीज। तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं छीना झपटी होती है, कहीं ना कहीं एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुल देयर रिसोर्सेज इन देयर ओन साइड। So that is the only reason it might happen to it might lead to the conflict. तो conflict is a class of interest, तो दो पार्टीज की इंटरेस्ट। व्हाट अबाउट द ट्रांजेक्शन एनालिसिस सब कंप्लीट कराएंगे, सिस्टम वाइज चल रहा है, जो टॉपिक पहले लगता है वो पहले पढ़ा रहे हैं। आई ट्राई टू कंप्लीट होल सिलेबस, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इज ए क्लास ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यूज, एक्शन, व्यूज और डायरेक्शंस। डी बोनो ने 1985 में एक पेपर लिखा था, उसमें दिया था कि इट इज ए क्लास ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, वैल्यूज, एक्शन, व्यूज और डायरेक्शंस। Clear? So generally there are diverse. Conflict refers to the existence of that class. Conflict is initiated the instant class occurs. Generally there are diverse interests and contrary view behind a conflict, which are revealed based people look at a problem from their viewpoint alone. Conflict is an outcome of organizational interests, interaction and disagreement. It can be settled by identifying and neutralizing the etiological factors. Once conflict is concluded, it can provoke a positive change in the organization. So conflict is the main reason behind the conflict. It's a class of interest. It's a class of interest between the two parties. A class of interest, class of values, class of directions,
एंड कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट क्लैश, उसी क्लैश की वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. The conflict is initiated the instant clash occurs. Generally, there are diverse interests or contrary view behind a conflict, which are revealed when people look at a problem where from their viewpoint alone. Conflict is an outcome of organizational interests, interaction, and disagreement, and it can be settled by identifying and neutralizing the etiological factor. Once हम लोग etiological factors को identify कर लेंगे, neutralize कर देंगे, तो it might have settled down also. तो once conflict is concluded, it can provoke a positive change in the organization. सीधी सी बात है, एक बार conflict खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव आपको चेंज ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा. अदरवाइज अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपको पता है कि यहाँ नेगेटिविटी होती है, पूरे चारों तरफ नेगेटिविटी आपकी दिखती है, और कहीं ना कहीं वी आर नॉट एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. अगर हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वर्किंग टुगेदर इज नॉट ऑलवेज इजी. वर्किंग टुगेदर इज नॉट ऑलवेज easy it because of conflict. Working together is not always easy. सब लोग साथ में काम करते हैं, बहुत सरल बात नहीं है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत रहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑन ए ऑर्गेनाइजेशन. एक इंडिविजुअल पार्ट, एक इंडिविजुअल्स की लाइफ की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो इट इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये रेगुलर आप देखेंगे, रेगुलर कई सुबह से लेकर शाम तक कई सारे ऐसे रीजंस दिखते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं. ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए. अकॉर्डिंग टू द J.W. थॉमस ने क्या बोला है, कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस दैट बिगिन व्हेन वन पार्टी परसीव दैट अनदर पार्टी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड or about to be negatively affect something that the first party cares about. That is called conflict. The conflict is a process that begins when party perceive that another party is negatively affect or about to be negatively affect something that the first party cares about. That is called conflict. So this definition describe that point is an ongoing activity when interaction crosses over to become an inter-party conflict. सीधी सी बात है, जब क्या होगा कि इंटरेक्शन क्रॉसेस ओवर होता है बिटवीन द टू पार्टी, दैट माइट लीड टू द क्रिएट द इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट. द कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस इन which an effort in a purposefully made by one person or unit to block another that result in frustrating the attainment of the other goals or the furthering of his or her interest. The conflict is a process in which an effort is purposefully made by one person or unit to block another that result in a frustrating. तो जानबूझ के हम लोग डेलिबरेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे की चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, जानबूझ के इंटरेस्ट क्रिएट, जानबूझ के हम लोग कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं. इट विच माइट रिजल्ट टू द फ्रस्ट्रेटिंग एंड अटेनमेंट ऑफ द अदर गोल्स और द फर्दरिंग ऑफ इज और हर इंटरेस्ट. अगर नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम लोग बच्चा बात करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट इन डिस्कशन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी टू डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट. कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिशन. कॉन्फ्लिक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिशन. बिल्कुल कंपटीशन अलग है. कंपटीशन हमारा हेल्दी होता है, तो समटाइम कंपटीशन आल्सो माइट लीड टू द क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट, बट इट कॉन्फ्लिक्ट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. competition in a competition can be in a positive manner also, but conflict is always in a negative. competition का conflict हमारा कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, कुछ पॉजिटिव आउटकम उससे निकल के नहीं आता. conflict occurs when two or more parties pursue two or more mutually exclusive goal. कॉन्फ्लिक्ट जब होता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टी टू और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स को अचीव करना चाहते हैं. दो या दो से ज्यादा गोल्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टी होती है, वो द पार्टी ट्राई टू अचीव द गोल्स. वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स होते हैं, दोनों पार्टीज की म्यूचुअली उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी हाई. कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस आउट ऑफ टू परसेप्शंस. आपको परसेप्शन बता दिया हमने, पर्सनालिटी बता दिया, एटीट्यूड बता दिया. आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, दुनिया के हर इंसान का परसेप्शन अलग अलग होता है. They are having the different perceptions, they are having the different attitude. So on the basis of the differences in their perception, it might lead to create the conflict. किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी परसीव्ड वैल्यूज अलग हैं, दूसरे इंसान की परसीव्ड वैल्यू अलग होंगी. कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द डेलिबरेट बिहेवियर. जानबूझ के किया हुआ बिहेवियर होता है. कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द डेलिबरेट बिहेवियर. So conflict is different from competition. Conflict occurs when two or more parties pursue the two or more mutually exclusive goals. Conflict arises out of two perceptions. Conflict refers to the deliberate behavior. When हम लोग sources of conflict की बात करेंगे, there are three levels of conflict in the life of an organization, and every level there are different. Intrapersonal conflict, interpersonal conflict और intra-group conflict. पहला intrapersonal conflict क्या होता है? Intrapersonal conflict refers to the conflict within a
Individual, it arises from frustration, numerous goals which requires equal attention, but it is not possible to devote in goals having both positive and negative aspect. So intrapersonal goals की हम लोग बात करते हैं तो intrapersonal goals refers to the conflict within an individual. एक के अंदर खुद ही की मतलब एक there is no involvement of the two person. So it arises from frustration, numerous goals which require equal attention. आपके पास कई सारे goals आपको अचीव करने को दे दिए but you are not able to, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप चाहकर भी सभी goals को एक साथ अचीव नहीं कर सकते हैं. तो what happened? तो इंट्रापर्सनल को कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स द कॉन्फ्लिक्ट विद इन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल्स के अंदर ही होता है, विद इन द इंडिविजुअल होता है. ये क्यों होता है? जब आपको ए बी सी डी ई एफ जी सी डी सपोज दैट एक टाइम में आपको 4 काम करना है, तो 4 काम को आप एक साथ टाइम डिवोट नहीं कर सकते, आपके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है. तो इट अराइज फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, न्यूमरस गोल्स विच रिक्वायर इक्वल अटेंशन बट इट इज नॉट पॉसिबल डिवोट एंड गोल हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. तो इंट्रा पर्सनल हुआ विद इन द ह्यूमन बीइंग, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. क्लियर है? वही हम लोग इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट. सॉरी, पहले इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रिफर टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स. ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं. इट अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन पर्सनालिटीज, परसेप्शन, टेम्परामेंट्स, वैल्यूज, सोशो कल्चर फैक्टर एंड रोल एम्बिग्यूटीज. तो जब 2 लोगों के बीच, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां पर मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं, उसको इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. ये क्यों होता है? इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन पर्सनालिटी का अलग है, परसेप्शंस, टेम्परामेंट्स, वैल्यूज, सोशो कल्चर फैक्टर एंड रोल एम्बिग्यूटीज. इंटर ग्रुप, ये 2 अलग अलग ग्रुप ए ग्रुप बी के लोग हैं. ग्रुप ए में 10 लोग काम कर रहे हैं, ग्रुप बी में 10 लोग काम कर रहे हैं. उन दोनों के ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट. इसको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है. इट रिफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर सेक्शंस, ग्रुप और डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप इन फ्रीक्वेंट हाईली विजिबल. मैनेजमेंट, मार्केटिंग और एचआर हो गया, एचआर और फाइनेंस, ऑपरेशन और प्रोडक्शन. तो आपस में 2 डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 2 ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 2 सेक्शंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. आप बताइए इसमें कोई डाउट हो तो बताइए इसमें अभी तक. कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए. The reasons for intergroup conflict are many, such as task interdependency. तो टास्क इंटरडिपेंडेंसी होती है. इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच टू डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इन्फॉर्मेशन, कंप्लायंस एंड असिस्टेंस. सपोज इट मार्केटिंग और प्रोडक्शन. मार्केटिंग वाले मार्केट से ऑर्डर लेकर चले आए कि 100 मार्कर्स आपको प्रोड्यूस सेल करना है, बट प्रोडक्शन वालों ने 100 मार्कर प्रोड्यूस नहीं किए, या मार्केटिंग वालों ने बहुत लेट इन्फॉर्मेशन दिया कि आपको 10 तारीख को प्रोड्यूस करना है, 10 तारीख को देना है, आप 9 तारीख को उनको बता रहे हैं कि एक दिन में बनाकर दे दो. दैट इज टोटली इम्पॉसिबल. So task interdependency, when the 2 departments are dependent on the each other task, information, compliance and assistance, that is called task interdependency. मार्केटिंग वाला हो गया या एचआर वाला हो, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन वालों ने कुछ बंदे मांगे, कुछ इंप्लॉइज मांगे, बट एचआर वाले रिक्रूट करके उनको नहीं दे पाए समय पे. तो दैट इज कॉल्ड टास्क इंटरडिपेंडेंसी. टास्क एम्बिग्यूटी क्या होती है? Another important sources or intergroup conflict arise when it is not clear which group is responsible for performing which task. जब आप लोगों को पता नहीं है कि प्रोडक्शन वाला डिस्पैच करेगा या ऑपरेशन वाला डिस्पैच करेगा या सप्लाई चेन वाला डिस्पैच करेगा. ठीक है. तो टास्क एम्बिग्यूटी इज ऑल अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन इट इज नॉट क्लियर विच ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग विच टास्क. दैट इज कॉल्ड टास्क एम्बिग्यूटी.
तो उसके लिए आपको पता ही नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो आपको टास्क एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गोल इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होता है? गोल्स ऑफ टू डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्लैश विद ईच अदर कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। अगर दोनों के गोल्स में कोई क्लैशेस हो रहा है कि तब भी कहीं ना कहीं चांसेस है, ठीक है। ठीक है, इसको इफ द गोल्स ऑफ टू डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्लैश विद ईच अदर कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, द कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, बहुत सारे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं उसके बीच में, मान लीजिए कि 2 चेयर है और 2 चेयर के लिए 10 लोग कॉम्पीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। तो इफ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, इवन दो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी मच हाई। So resources of an organization are limited and every department tries to secure maximum share in that, it result in a conflict. कॉन्फ्लिक्ट, एक संसाधन एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिमिटेड है और सभी डिपार्टमेंट मैक्सिमम शेयर चाहते हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्सेस में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा रीजन है। Competitive reward system. If there is a system in the organization that reward will be given on the basis of competitive performance, it will result in a conflict. If there is a system in the organization that reward will be given on the basis of competitive performance, अगर आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड दिया जाएगा तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है किसका, कॉन्फ्लिक्ट का। सब कहीं ना कहीं सब लोग कहीं ना रेस में भागेंगे, रेस में अगर सभी भागेंगे तो ऑटोमेटिकली दिक्कत की बात है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहेंगे। एवरीबडी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर ओन गेन्स, एवरीबडी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर ओन परफॉर्मेंस एंड, तो अगर जब भी रिवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस होंगे तो इट विल रिजल्ट इन क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। चेंजिंग व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Conflict exists in the organization from the very beginning, but attitude toward conflict has been changed. We have a traditional view, we have a modern view. Conflict is avoidable. Traditional view ये था कि conflict हम लोग avoid कर सकते हैं। यहाँ पर एक conflict is inevitable. Caused by management error in designing situation. क्यों, किन कारणों की वजह से conflict होता था? Caused by the management error in designing the situation. यहाँ पर caused by either organizational structure, unavoidable differences in a goal, difference in values and goals and etc. Disrupt the organization, prevent optimal performance. It contribute and detract the organizational performance. Task of management is to manage the conflict. Task of management is to manage the level of conflict. किस level of conflict है, क्योंकि अलग अलग level के conflict होते हैं। Optimal organizational performance requires the removal of conflict. आपको एक optimal organizational performance चाहिए ताकि आप conflict को remove कर सकें। Optimal organizational performance require moderate level of conflict. Simple है बहुत। अब बात करेंगे लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वी हैव अ लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव अ फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव अ मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। तो हमारे पास 5 तरीके के मेजर कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज एम्प्लॉइज टू कम्पीट विद ईच अदर। होता है ये जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है एम्प्लॉइज को एक मोटिवेट करता है कि कम्पीट करिए एक दूसरे से। कॉम्पिटिशन में भी इधर ओपन हो और क्लोज। Unfortunately, improper reward system or reorganization system for employees creates some conflict. Organization conflict is situation of close or win-lose competition in which parties try to keep other from attaining their goals. There are mainly 3 levels of organizational conflict. It may exist between individuals or between individuals and group or group in some organizations. अब कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं? पहला हुआ लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? This is the first stage. This is the first stage in which only potential opposition exists between parties. This means all cause of conflict lying hidden. So this is the very first stage होती है, ठीक है। तो in which only potential opposition exist, केवल potential opposition exist करते हैं between the parties. This means all causes of conflict lying hidden. परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इन दिस स्टेज पार्टीज बिकम अवेयर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इसमें केवल पता नहीं होता लोगों को, कॉन्फ्लिक्ट लोग छुपाने की कोशिश करते हैं पहले वाले में। दूसरे वाले में लोग अवेयर हो जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड दे बिगिन परसीविंग द कॉन्फ्लिक्ट, और आपस में कॉन्फ्लिक्ट को परसीव करना स्टार्ट कर देते हैं। बात करना बंद कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। फिर फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट की हम लोग बात करते हैं। इन दिस स्टेज पार्टीज बिकम इमोशनली इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड फीलिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट में वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उनका और कॉन्फ्लिक्ट को फील करना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट। फिर मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। इन दिस स्टेज पार्टीज बिगिन टू गिव एक्सप्रेशन देयर हॉस्टाइल बिहेवियर। सम एक्सप्रेशन ऑफ द हॉस्टाइल बिहेवियर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिक्रीज इंटरेक्शन,
ब्रेक डाउन इन वर्क फ्लो। तो जो मैनिफेस्ट कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें क्या होता है, वो लोग एक्सप्रेस करना शुरू कर दे कि हमारा आपसे कॉन्फ्लिक्ट है, कोऑर्डिनेशन करना खत्म कर दिया, इंटरेक्शन बात बिल्कुल बंद कर दिया, और ब्रेक डाउन इन वर्क फ्लो, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में भी ब्रेक डाउन हो गया, कहीं ना कहीं रुकावटें उसमें आना शुरू हो गई। कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर में होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट डिस्क्रीट सिचुएशन विद ए क्लियर बिगिनिंग एंड एंड, सिंपल है। अब आया फंक्शनल एरिया ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कौन कौन से फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं? Functional conflict refers to the confrontation between two ideas, goals, and parties that improve employees and organizational performance. Benefit of the conflict is following. Conflict increase the awareness of what, who, and how. क्या हुआ, कौन इसमें जिम्मेदार है, कैसे है। Conflict motivate organizational members to consider the problems. Conflict motivate the organizational members to consider the problem, की प्रॉब्लम क्यों है, किन किन वजह से, किन कारणों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट द चेंजेस, बदलाव लाता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इनहांस द मोरल एंड कोहेजन। हाई क्वालिटी डिसीजन रिजल्ट व्हेन पर्सन एक्सप्रेस देयर अपोजिंग व्यूज इन पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट स्टिमुलेट द इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी, होता ही है ये। एंड कॉन्फ्लिक्ट ऐड टू द फन ऑफ वर्किंग विद अदर व्हेन नॉट टेकन सीरियसली, सिंपल। अब है डाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल in organization and also desirable, but without an effective means for handling it, conflict can tear relationship apart and interfere with the exchange of ideas, promotion, resources in group and between department. Dysfunctional conflict hinders and prevent organization goals from being achieved. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है, कॉन्फ्लिक्ट एक इनविटेबल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग ठीक तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कैन टीयर द रिलेशनशिप को खत्म कर सकता है, interfere with the ideas of exchange of ideas, information and resources in the group and between the member. तो उससे क्या होगा, डाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हिंडर्स एंड प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। हो सकता है फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव ना कर पाए। रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज एंड इम्प्लाइज असर्ट द डिमांड फॉर इंक्रीज शेयर इन ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड। पोजीशन किसी को बहुत अच्छी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पा रहा, काम का अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट एंड इंटरडिपेंडेंसी। Even management faces conflict with many forces from outside the organizations, such as government, unions, and other coercive groups which may impose restrictions on managerial activities. The conflict emanates from more than one sources and to true origin may be hard to identify. Important initiator of conflict situation include, तो हमने कई सारे टाइप, कई सारे रीजन्स आपको कॉन्फ्लिक्ट के पिछले बताए थे, याद होगा आपको कि टास्क इंटरडिपेंडेंसी है, टास्क एम्बिग्यूटीज है, गोल इनकम्पेटिबिलिटीज है, कॉम्पिटिशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत सारे लोग सेम रिसोर्सेज को चेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम, तो कई सारे कारणों की वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। पीपल डिसएग्री फॉर ए नंबर ऑफ रीजन, कई सारे कारणों की वजह से लोग डिसएग्री होते हैं, बहुत सबका अलग अलग कारण भी हो सकता है। कुछ लोगों को प्रमोशन चाहिए, कुछ लोगों को अप्रिसिएशन चाहिए, कुछ लोगों को एक्नॉलेजमेंट चाहिए, कुछ लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए। They see things differently because of differences in understanding and viewpoint. Most of these differences are usually not important. Personality differences and clashes in emotional need may cause the conflict. Conflict arises when two groups or individuals interacting in the same situation see the situation differently because of different set of setting. भाई है तो कई सारे कारणों की वजह से परसेप्शन अलग है, पर्सनालिटी अलग है, इमोशनल नीड्स अलग है, तो इन वजह से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। In a particular mood, individual think and perceive in a certain manner. For example, the half full glass of one individual can be half empty to the another. तो आधा कोई बोलेगा आधा ग्लास है, कोई बोलेगा आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा आधा खाली है, तो दैट इज ऑल। तो ऑब्वियसली बोथ इंडिविजुअल कैन बी द सेम थिंग, दोनों इंडिविजुअल सेम बात बोल रहे हैं, बट दे डू सो डिफरेंटली ओइंग द कॉन्ट्रास्टिंग परसेप्शन एंड डिस्पोजिशन। दोनों की परसेप्शन अलग है, दैट इज द ओनली रीजन, वो अपने अपने व्यू पॉइंट से उस पर्टिकुलर बात को बोल रहे हैं। दूसरा, पीपल हैव डिफरेंट स्टाइल्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड स्लोगन्स, वी डिटरमाइन देयर चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव। व्हेन चॉइस कॉन्ट्रडिक्ट, people want different things that can create conflict situation. For example, risk-taking manager would be in a conflict with a risk-minimizing supervisor who believes in a firm control and well-kept routine. सीधी सी बात है, जो रिस्क टेकिंग मैनेजर होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेगा, बट जो सुपरवाइजर रिस्क लेना नहीं चाहता तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहेंगे। पीपल हैव डिफरेंट आइडियोलॉजिकल, लोगों की अलग अलग है, कुछ लोग बीजेपी को पसंद कर रहा है, कुछ लोग कांग्रेस को पसंद करता है, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, तो दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजिकल, दे हैव डिफरेंट फिलोसफिकल आउटलुक। एज इन द केस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, their concept, objective and way of reacting to various situations are different. These often create conflict among them.
Conflict situation can arise because people have different status. When people at a higher level in the organizations feel indigent about suggestion for changing put forward from their subordinate or associate, it provoke conflict by tolerating or allowing the such suggestion. Potential conflict can be prevented. आगे बात करेंगे पीपल हैव डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल विच इनकरेज देम टू डिसएग्री. अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचने का तरीका होता है लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. सर्टेन थिंकिंग स्टाइल में बी यूजफुल फॉर सर्टेन पर्सन बट ineffective or ineffectual or even powerless in other situation. तो कुछ लोगों का सोचने का तरीका कुछ पर्पज के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए ठीक मान सकते हैं बट हर जगह वो सोचने का तरीका सही नहीं होता. Peoples are supposed to disagree under particular circumstances such as sport where conflict is necessary and even pleasurable. People are concerned with the fear, force and fairness and funds. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द कॉन्सेप्ट किन किन कारणों की वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार. फेयरनेस रिफर्स टू द इंडिविजुअल सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट, फंडामेंटल फैक्टर लर्नड इन द अर्ली चाइल्डहुड. ठीक है, दिस सेंस ऑफ फेयरनेस डिटरमाइन द मोरल वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल. पीपल हैव डिफरेंट मोरल वैल्यूज एंड अकॉर्डिंगली अप्रिशिएट अ सिचुएशन इन डिफरेंट वेज क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. तो पढ़ लीजिएगा. ये हमने आपको बता ही दिया एक बार. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, तो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो गया इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन. एन इंटरफेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन कैन अकर along with the vertical and horizontal. वर्टिकल भी हो सकता है मैनेजर सुपरवाइजर लेबर, एंड होरिजेंटल भी हो सकता है मैनेजर मैनेजर सुपरवाइजर सुपरवाइजर. ठीक है, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल बिटवीन डिपार्टमेंट एंड वर्क ग्रुप. फिर इंटर ग्रुप हमने आपको बता ही दिया. कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर ऑफ ग्रुप, मार्केटिंग और एचआर वाले का हो गया, एचआर प्रोडक्शन का हो गया, प्रोडक्शन और मान लीजिए रिसर्च का हो गया. अर्ली स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, वेज ऑफ डूइंग टास्क और रीचिंग ग्रुप गोल्स. ठीक है, बिटवीन टू और मोर ग्रुप. कोई इंटरपर्सनल हो गया, बिटवीन टू और मोर पर्सन के बीच में होता है. डिफरेंसेस इन व्यू व्हाट अबाउट व्हाट शुड बी डन, effort to get more resources, differences in orientation to work and time in different part of an organization. That is all about intrapersonal. Thank you. तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत टेक्निकल टॉपिक नहीं था. इसमें टाइप पढ़ लीजिएगा. इंटरपर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या होता है, लेटेंट क्या होता है, मैनिफेस्ट क्या होता है, वो सब कुछ पढ़ लीजिएगा. यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है. हर बार कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है. केवल एक क्वेश्चन मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट से आने की संभावना है और एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट से. तो आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए. एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा. इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया. आपको नोट्स भेज देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा इसको. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच. अगर किसी को डाउट नहीं तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गुड बाय, टेक केयर.